مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کے بال مبارک کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سبحان اللہ۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، چونکہ یہ پروگرام ایک ادارے کی دستار بندی، ردائے فضیلت اور عرس سے منسوب ہے، اس لیے ٹاپک ہے قرآن ایک عالمگیر نظام ہے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے عالم پر، عالم بروزن فاعل، جیسے خاتم، آلہ ختم کو خاتم کہتے ہیں، آلہ علم کو عالم کہتے ہیں۔ علم، عالم، عالم، معلوم، پوری دنیا چار قسموں میں آ گئی اور سب کا مشتق علم ہے، سب مشتق ہے، مصدر علم ہے۔ علم ہی سے عالم بنا، علم ہی سے معلوم بنا اور علم ہی سے عالم بنا۔ اور عالم دنیا کو کہا جاتا ہے، جس نے علم کو سمجھ لیا وہ عالم کو سمجھ لے گا، اور جو عالم کو سمجھ لے گا وہ عالم کو سمجھ لے گا۔ علم کیا ہے؟ جواہر المنطق میں ہم لوگوں نے یہ تعریف پڑھی ہے، علم وہ نور ہے جس کے دائرے میں کوئی چیز آئے تو منکشف ہو جائے۔ یہ علم کی ڈیفینیشن، علم کی تعریف ہے۔ لیکن قرآن حدیث شریف میں علم کو الگ بتایا گیا اور سیدھے اس کی تعریف کی گئی مبتدا خبر سے، العلم نور، علم نور ہے، العلم مبتدا نور خبر۔ تو علم نور ہے، اور نور کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کی چار قسمیں، تفسیر الآیہ بالآیہ، تفسیر الآیہ باقوال صحابہ، تفسیر الآیہ بالحدیث، تفسیر الآیہ باقوال صحابہ، اور تفسیر بالرائے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن شریف میں، حدیث شریف میں یہ آیا العلم نور، علم نور ہے۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف الف لام میم پہلا پارہ، سیقول دوسرا پارہ، تلک الرسل تیسرا پارہ، لن تنالوا چوتھا پارہ، والمحصنات پانچواں پارہ، لا یحب چھٹا پارہ۔ اس پارہ کو پڑھتے 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 ایک آیت آئی، قد جاءکم من اللہ نور، پیارے مصطفیٰ نور ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا العلم نور، علم نور ہے۔ تو اگر حد اوسط کو آپ گرائیں گے منطق کی دنیا میں تو یہ نتیجہ نکلے گا، علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا۔ آکسفورڈ، کیمبرج، جے این یو، ایم یو، اسٹیفن کرلیون، ڈارون، آئنسٹائن، زرقالی، ارسطو، کیپلر، فیثاغورس، ارسطو، اے پی جے عبد الکلام تک، یہ عالم نہیں، کیونکہ اس نے مصطفیٰ کو نہیں جانا۔ عالم احمد رضا خان ہے جنہوں نے عالم، یہ علماء دکھ رہے ہیں اسٹیج پر، انہوں نے مصطفیٰ کو جانا۔ مصطفیٰ کو جاننا یہ علم ہے، جو مصطفیٰ کو نہیں جانتا وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں سعدی گشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رائے حق نہ نمایت جہالت۔ جو علم حق کا راستہ نہیں بتاتا وہ علم ہے ہی نہیں، جہالت ہے۔
پھر یونیورسٹی والے کیا بھائی صاحب کبھی بتا یہ پڑھتے 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 انہوں نے دنیا کی پیدائش پہ گفتگو کی اور یہ کہا آج بھی سلیبس سی بی ایس ای پیٹرن میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پوری دنیا ایک ڈاٹ کی شکل میں ڈاٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ www کے بعد جو بندی لگتی ہے نا اسے ڈاٹ کہتے ہیں با کے نیچے ایک نقطہ اسے ڈاٹ کہتے ہیں پوری دنیا ایک ڈاٹ میں تھی اور اپنی کتاب میں لکھا ہے showed the Big Bang hypothesis stated that all of the cat and past matter in the universe came into existence at the same time only 13.8 billion not million billion years ago at this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe is below it began. اچانک وہ ڈاٹ پھٹتا ہے اور کپل وستو بن جاتا ہے نیپال بنتا ہے لندن ڈربن اٹلی سسلی انٹارکٹیکا بن جاتا ہے یہ درویت کے ماننے والوں کیا دنیا ایک ڈاٹ سے پیدا ہوئی ہے آپ کی کیا رائے کئی چیز پوسی ہے میری مہابھارت کے ماننے والوں what are you thinking about Big Bang theory reply it is possible 18 قرآن محرف توریت و انجیل و زبور کے فالوورز لیڈرز اسکالرز what are you thinking about Big Bang theory reply it is surely it is undoubtedly پوری دنیا ایک ڈاٹ سے بنی اسلام قرآن جامعہ اہل سنت نظامیہ کے اسکالر الف با تا سا کے ہولڈر حافظ قاری عالم مفتی محقق مجدد مفسر غوث عبدال مادی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک ڈاٹ سے بنی نیوٹن آئنسٹائن کی ناجائز اور جائز اولادیں سب بول رہی ہے دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ایک نقطے سے بنی اسلام تو کیا بولتا ہے قرآن تو عالمگیر ہے نا تو قیامت تک کے لیے آیا نا تیری کیا رائے ہے کیا دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ہے اس سوال کا جواب 1400 سال پہلے دفع نقل مقدر کے تحت معلم کائنات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ایک صحابی نے لے لیا گویا نگاہ صحابیت یہ دیکھ رہی تھی جب 21ویں صدی عیسوی کا سورج طلوع ہوگا گوگل کا زمانہ ہوگا ٹویٹر کا دور ہوگا یوٹیوب کا دھمال ہوگا رول ٹاپ ٹیبلٹ ڈیسک ٹاپ آئی فون اور ریڈمی اور ون پلس کا دھمال ہوگا ایسے ماحول میں لوگ یہ کہیں گے دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ہے تو کہیں میرے مصطفیٰ کی امت پریشان نہ ہو جائے اس لیے اس سوال کا جواب بھی حدیث میں درج کرا دیتا ہوں مصطفیٰ حضرت جابر کھڑے ہوتے tell me please یا رسول اللہ about first creation then all world اخبرنی من فضلک ان اول شيء خلق الله تبارك وتعالى قبل كل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور إلى 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول الله ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع إلى 4 أجزاء إلى آخر یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا پیارے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں جابر ابھی زمین نہیں ہے آسمان نہیں ہے ستارے نہیں ہے کہکشاں نہیں ہے بحر بر نہیں ہے خشک و تر نہیں ہے اشجار ابحار اقمار انہار نہیں ہے کائنات کی کوئی شے نہیں ہے اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا پتہ یہ چلا نیوٹن آ جا ڈاروین آ جا زغالی آ جا ارسطو آ جا کیپلر آ جا فیثاغورس آ جا آکسفورڈ والوں تم بھی آؤ کیمبرج والوں تم بھی آؤ جے این یو والوں تم بھی آؤ جے این یو والوں تم بھی آؤ دنیا کی تمام یونیورسٹیز کے فقاترہ پروفیسر اسکالر وائس چانسلر سب کے سب آ جاؤ تم جسے ڈاٹ کہتے ہو اس میں تو پاسبل کا لفظ لایا ممکن کا لفظ لایا اس کی حقیقت سے آج تک تم جاہل ہو کہ وہ ڈاٹ رہتا کہاں تھا
پاس رکھے اعلیٰ حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ. You have any proof? That's dot. ذالک النور. وہ ڈاٹ نور تھا. اس کی کیا دلیل ہے؟ Yes, I have. One day, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel, "Oh Jibreel, what is your age?" Jibreel, ماذا عمرك? آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ Reply, I don't know what is my age. حضور مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے. ہاں ایک تارا اور زمین سے تارا ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے. ایک اسٹار زمین سے اسٹار ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے. یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے, مگر ایک اسٹار ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا. اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ, مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہوں. بڑائی کا امام اسی کو لکھتا ہے. وہی ہے اول, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے مل لے, اسی سے اس کی طرف کر. زندہ باد سبحان اللہ. پتہ چلا Bro, other example, listen to me carefully. پرانے زمانے میں اتنی موٹی, میں نے دادا کی دیوار دیکھی ہے درپور میں, اتنی موٹی مٹی کی دیوار بنی, اس میں شہد کا چھتا بھی لگاتے, پاؤں دبانے کے بہانے شہد بھی کھاتے. دادا کا پاؤں دبانا, اتنی موٹی دیوار, اس میں تاج بنا رہا. لائٹ کا نام نہیں. ایڈیسن داس نے سب سے پہلے امریکہ کی لائٹ کی ایجاد کی. ایڈیسن داس, وہ بھی 211 آئیڈیات فیل ہوئے تھے لائٹ بنانے کے لیے. تو سوچتا تھا یار یہ پرندے کیوں اڑتے ہیں, تو دیکھا کہ اوپر سے نیچے اور چڑیا کیڑے مکوڑے کو کھایا اس نے اور اڑتے ہیں. ایڈیسن داس نے کہا وہ کیڑا کھاتا اس لیے اڑتا ہے. اس نے بھی کیڑے پکڑ کے فرائی کیا, خود نہیں کھایا, نوکرانی کو کھلایا. ایک دن دیکھا مرغی بچے کسے دے گی, کیونکہ انڈے پہ بیٹھی ہوئی مرغی, ہاں انڈے پہ بیٹھنے سے بچے نکلتا. بہت سارے انڈے جمع کے اس پہ بیٹھ گئے, پورے کپڑے خراب ہوئے. اٹ از فیکٹ. اس کی ممی نے بہت مارا, لیکن وہ مایوس نہیں. 211 آئیڈیاز فیل ہوئے. اس کے بعد میں ایک دن ایسا آیا کہ اس نے لائٹ بنایا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ جَدَّ فَوَاجَهُ. لائٹ کا نام و نشان نہیں, تاج بنتا ہے, چراغ جلتا تھا اس میں. ہم لوگ خود بچپن میں چراغ لے کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور چراغ ایک چراغ مدرسے میں جلے, باقی سب لوگ بجھا کر کے چراغ لے جاتے. وہاں چراغ اسی جلتے ہوئے چراغ سے جلاتے تھے, اور اس طرح 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5, 5 سے 6 لائن سے بچے بیٹھ جاتے. اس کے بعد پڑھائی ختم ہو جاتی تھی, تیل ختم ہو جاتا تھا, سب کا چراغ بجھا دیتے تھے. پوری دنیا کے انسان اللہ نے ہر جسم ایک طاق رکھا, جس لائک ہم لوگوں کی پیٹھ ہے نا, پیٹھ ایسے پیچھے سے دیکھیں تو مثل طاق ہے پیٹھ. پوری دنیا کے انسان میں اللہ نے طاق بنایا, اور ہر طاق میں اللہ نے چراغ بھی رکھا. اس چراغ کو دل کہا جاتا ہے. ہر سینے میں چراغ ہے, اس چراغ کو دل کہتے ہیں. اور سب چراغ بجھے ہوئے ہیں, جلتا ہوا چراغ محمد مصطفیٰ کا. ہر انسان پر نبی کی اتباع لازم ہے, مصطفیٰ پر کسی کی اتباع لازم نہیں. ہر شخص پر اقرار باللسان تصدیق بالقلب لازم ہے, لازم. جلتا ہوا چراغ پیارے مصطفیٰ سب پر لازم ہے کہ اپنے دل کو نبی کے دل کے قریب کریں. چراغ بجھا ہوا ہے نا, جلتے ہوئے چراغ کے پاس آپ اپنے چراغ لے جا کے جھکائیں گے تب نہ لو سے لو ٹکرائے گی, اور جب تک لو سے لو ٹکرائے گی نہیں روشنی ٹرانسفر نہیں ہوگی. اور ٹکرانے کے لیے آپ کو جھکانا پڑے. نہیں, میں
सामने वाले को झुका के जला लूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, वो तो मुख्तार है, मोहताज तो आप है, बंद चराग तो आपका है ना, बंद चराग आपका है, वो तो मुख्तार है। अब चराग को झुकाना पड़ेगा। अगर कोई सोचे मैं नहीं झुकाऊंगा तो वो चराग कभी जल ही नहीं सकता। जो नहीं झुका, दरे मुस्तफा पे अकड़ गया, उसे अबू जहल कहा जाता है, उसे उतबा और शीबा कहा जाता है। और जिसने झुक कर अपने दिल को नूरे मुस्तफा से चमका लिया, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, क्या बात है, फारूक उस्मान अली कहा जाता है। और 14वीं सदी हिजरी में इमाम अहमद रजा कहा जाता है। जब उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। और झुकाया ब्रो, रोशनी आने के बाद आपने खड़ा कर लिया, अब क्या होगा? चराग आपका उसी वक्त तक जलेगा जब तक आपके चराग में ऑयल होगा, तेल होगा। तेल खत्म होने के बाद चराग बुझ जाएगा ना। इसलिए अगर सामने वाले के चराग में बहुत ज्यादा तेल है तो आप ये चाहते हैं कि आपका चराग कभी बुझे नहीं, तो झुके रहने दे अपने चराग, क्योंकि आपके चराग की लो जब उस चराग की लो से टकराई हुई रहेगी तो आपका तेल नहीं जलेगा, सामने वाले का तेल जलेगा। एक मिसाल दे रहा हूं, सामने वाले का तेल जलेगा। जो चराग जला के हटा लिया, चराग जला के झुका नहीं रहा, हटा लिया, उसे अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी कहा जाता। कुरान ने ऐसों के बारे में कहा, लाता तबिरो कद कफर तुम बादा ईमान, बहाने ना बनाओ, काफिर हो गए ईमान लाने के बाद, चराग जलने के बाद बुझ गए। और जिसने दरे नबी पे झुके रहने दिया सर को, दरे नबी से कभी उठाया नहीं सर को, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साहिल, सजदा न समझ लगदी, सुन देता हूँ नजर, जिसने झुके रहने दिया, कभी दरे नबी से उठाया नहीं, उसे गौसे आज़म कहा जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, मुफ्ती आज़म कहा जाता है, और 15वीं सदी हिजरी में ताजुल शरिया कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। झुके रहने, दरे नबी के चराग को झुके रहने, उठाया नहीं। ऐसे को सुन्नी सहीहुल अकीदा के लीडर रहनुमा जलता हुआ चराग कहा जाता है। ये दुनिया बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुरान आलम के निजाम में याद रखिएगा। सबसे पहले उर्स के हवाले से बता, ऐन रे पेश उर सीन साकिन उर्स। अहले हदीस और कादियानी बहुत ज्यादा कदम फैला रहे हैं नेपाल। वो पूछेंगे कुरान शरीफ में आया क्या उर्स? तुम लोग उर्स मना रहे हो, हजरत सादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मना रहे हो, कुरान शरीफ में आया क्या? जगह आगे पूछेगा, हदीस में आया क्या? अहले हदीस पूछेगा, गैर मुकल्लिद पूछेगा, आज के प्रोग्राम से बता दीजिएगा हाँ आया ना, हदीस शरीफ में आया ना। मरने वाले से पहला सवाल, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़िहा करोगे, क्वेश्चन फॉरवर्ड इन दिस पहले से जब कपिल वस्तु माय ब्रो, जब पहले सवाल का जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, दैट इज क्लियर। गैर से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फबरिशु मिनल जन्नह वल्बिशु मिनल जन्नह वफ्तहुल अबवाब मिनल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, लेट द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, बट नो नो नो, रिजल्ट नॉट आउट। एक मार्क्स भी नहीं मिलता, एक नंबर भी नहीं मिलता उसको। दूसरा सवाल, पहले सवाल के जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी जानते हैं? रब्बी अल्लाह, पहले सवाल का जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब मुसलमान का थोड़ी, ये जवाब यहूदी का है। दुनिया में यहूदी का क्या कहना है? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई किसको कहते हैं? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा रब अल्लाह ये मुस्लिम का जवाब नहीं। रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनों का, दीन क्या तेरा? जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ। अब तो मसला क्लियर हो जाना चाहिए ना, अब तो जन्नत की बिशारत मिल जानी चाहिए। मगर नो नो नो, क्योंकि हमारा रब जानता है
میرا دین اسلام ہے یہ کہنے والے منافق بھی ہوئے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اچھا صدق و کذب کی تعریف نومیر میں ہم نے یہ پڑھی تھی جو خلاف واقعہ ہے اسے کاذبہ کہتے ہیں. یہاں خارج میں رسول اللہ کے رسول ہے، منافق کا جملہ صحیح تھا خارج میں، اس کے باوجود قرآن نے جملہ کو کاذبہ کہا. جانتے ہیں کیوں؟ خارج کے مطابق تھا، ان مائی ہارٹ کے مخالف تھا. What is behind in his heart? دل کے مخالف تھا. قرآن نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو میرا دین اسلام، یہ جواب کافی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا جواب نہیں ہے. کیونکہ منافق بھی، وہابی بھی، دیوبندی بھی، معتزلہ بھی، دہریہ بھی، جبریہ بھی، قادیانی بھی اور اہل حدیث بھی سب بولتے میرا دین اسلام، میرا دین اسلام. اس لیے رب نے پہلے سوال کے جواب سے یہودی نصرانی کو چھاٹا، دوسرے سوال کے جواب میں وہابی دیوبندی قادیانی کو چھاٹا. اب تیسرا سوال، اور اس کا جواب وہی دے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری، ایک منٹ کے لیے بھی انقطاع زمانہ نہیں ہونا چاہیے. کنٹینیو 99 پیج پر حفظ الایمان میں تعریف دی اور ایک جملہ لکھا بالفرض بعد زمانے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ یہ ہے نون آؤٹ آف اسلام. کیا کام سے ماضی استمراری کنٹینیو. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور اس قریب سے کیا ہاذا ذالک الرجل، ہاذا اس مرد کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی موجود ہے اور نبی کو پہچاننے کا مطلب دیٹ از امپورٹنٹ. نبی کو پہچانے گا کون؟ نبی کو وہی پہچانے گا جو بار بار یہ سن چکا ہوگا وہی رب ہے جس نے تجھ کو. کیا بات نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نبی کا چہرہ اور مردے کو دکھایا جا رہا. بتا اس مرد کے بارے میں کیا. اچھا حاضر رسول کا لفظ نہیں آیا، حاضر محمد کا لفظ نہیں ہے، حاضر رجل. اس مرد کے بارے میں، اس مرد کے بارے اب پہچانے گا کون؟ میرے بھائی میں نے ایک وشے سنی ہی داخل ہے. تیسرے سوال کا جواب صرف سنی دے گا. اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علی یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى الله له من حاجة 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذلك ملك إلى آخر. جب کوئی شخص یوم جمعہ یا شب جمعہ درود شریف پڑھتا اللہ 100 حاجتیں پوری فرماتا، 30 دنیا کی 70 آخرت کی. پھر ایک فرشتہ متعین کرتا، وہ فرشتہ نبی کی بارگاہ میں درود کو ایسے پیش کرتا جیسے پبلک اپنے راجہ کو گفٹ دیا کرتی. اگلا جملہ ہے وہ فرشتہ آ کے نبی سے یہ کہتا ہے وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِإِسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ. وہ فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا فلاں آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، لکڑ دادا کا نام یہ ہے، چھکر دادا ہکر دادا کا نام یہ ہے. کیونکہ حدیث میں بے اسم ہی نام بتاتا ہے، ونسب ہی نسب بتاتا ہے، الی عشیرتہ خاندان در خاندان کا نام بتاتا ہے. اب آگے کا جملہ سنے. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ. میں اس درود شریف والے درود شریف پڑھنے والے کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں، سفید کاغذ میں محفوظ کر لیتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غلام جیلانی اظہری اس لیے لکھتا ہے کہ آپ کے سامنے کھول کے یاد کر کے تقریر کر سکوں، کیونکہ ہماری میموری پاور کمزور ہے، ہم گناہگار ہیں. لیکن مصطفیٰ کی میموری پاور کا یہ عالم ہے کہ نیوٹن، ڈارون، آئنسٹائن، زرقالی، ارسطو، کیپلر، بلکہ کمپیوٹر، ابھی منی کمپیوٹر ایسا بھی نکلا ہے جس کے اندر 18
के बचपन की अक्ल का करोड़वां हिस्सा तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, मुस्तफा की अक्ल का हिस्सा भारी होगा। उसकी दलील ये भी है, खुद नबी इरशाद फरमाते हैं, वइन्नी लअरिफु हजरन कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस वइन्नी लअरिफुहु अलआन। खुदा की कसम, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ जो पत्थर क़ब्ले बेअसद मुझे सलाम किया करता था। पत्थर को पहचानना ये कंप्यूटर का काम नहीं है, पत्थर को पहचानना ये शटल स्पेस का काम नहीं है, पत्थर को पहचानना ये शटल लाइट का काम नहीं है। न्यूटन इंसान को देख के भूल जाता है, आइंस्टाइन इंसान को देख के भूल जाता है, मगर मुस्तफा ने हजारों पत्थर को देखा है। इरशाद फरमाते हैं, जिस पत्थर ने मुझे सलाम किया, सालों साल गुजर चुके हैं, आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। गुलाम जिलानी अज़हरी के ज़हन फिक्र में सवाल पैदा होता है, मुस्तफा ने उस पत्थर के साथ मारिफत की तखसीस क्यों की जो पत्थर सलाम किया करता था, जो पत्थर नबी पे सलाम पढ़ता था। यही से इस बात की तरफ इशारा है, गोया इशारतुन नस से ये बात साबित है कि उम्मती तो हजारों होंगे, कब्र में भी और हश्र में भी, मगर मुस्तफा सलाम करने वाली उम्मत को पहचान लेंगे। सलाम करने वाली उम्मत को इस हदीस से साबित है। और फिर यौम जुमा और शब जुमा का लफ्ज आया, ईमानदारी से बताएं, कपिल वस्तु हो, काठमांडू हो, जयपुर हो या पोखरा हो, इंडिया हो, डरबन हो, लीबिया हो, ट्यूनिस हो, जजायर हो, मगरिब हो, मोरितानिया हो, जिबूती हो, सुमाल हो, जुज़ुर कमर हो, नाइजीरिया हो, इटली हो, सिसिली हो, 208 कंट्री में जहां भी सुन्नी रहते हैं, जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम जरूर पढ़ते हैं। हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया है और सुन्नी खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता है। पता ये चला, तीसरे सवाल रब ने रखवाया ही इसलिए कि वहां भी देवबंदी को छाट दिया जाए और सुन्नी को आगोश में ले लिया जाए। अब पूछा जा रहा है सुन्नी से, बता इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी, क्या कहते थे? ये मर्द वही है जिनके हाथ में एक फाइल है और उस फाइल में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसने नबी पे सलाम पढ़ा है, दुरूद और सलाम भेजा है यौम जुमा या शब जुमा, और वो भी तना नहीं, बाप का नाम दादा परदादा के नाम के साथ नबी के हाथ में फाइल मौजूद है। नकीरैन पूछ रहे हैं, बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मेरी अकीदत बोलती है कि नबी ये कह देंगे, नकीरैन इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो कौन है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकल्सा क्या है? दंड आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या? नबी पहचान लेंगे। यही वजह है इमाम मालिक से नकीरैन ने पूछा, नकीरैन ने क्या पूछा? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, है इमाम मालिक इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक वही है जिन्होंने मुत्ता इमाम मालिक लिखी। तो इमाम मालिक कहने लगे, जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आए आप, जिंदगी भर इन्हीं के बारे। मेरी अकीदत बोलती है अगर ताबू शरिया से पूछा होगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो मेरे ताबू शरिया ने कहा होगा, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर मालो जर उन पर फिदा कर दे, गिले तैबों में मिल जाऊं, गुलों में मिलके खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से मुझे यूं आशना कर, हयाते जावेदानी से। तीनों सवालों का जवाब दे दिया। अब उसकी दलील आ रही, तीनों सवालों का जवाब दे दिया, गैब से आवाज आएगी, नाम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। मेरे भाई, दुल्हन सोती नहीं, दूल्हे का इंतजार करती है। नाम कनौमतिल उरूस, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों मुश्तक है, मस्तर है उर्स, ऐन रे पेश उर्स सिंसा की। अरीस बना उर्स से, अरूस बना उर्स से, क्रिकेट से क्रिकेटर बना, प्ले से प्लेयर बना, इल्म से आलिम बना, शर्फ से शारिक बना, फज़ल से फाजिल बना, हश्म से एहतिशाम बना। ये सब है मस्तर
वजूद हो ही नहीं सकता। पता चला नम कनौमतिल उरूस, सो गया जैसे अरूस सोती है, और अरूस उर्स के बगैर नहीं। तो हदीस से मुश्तक की सूरत में उर्स आया, उर्स का लफ्ज हदीस में आया मुश्तक की सूरत में। मगर हाँ, एक बात जरूर समझ में आई, ये आता है तीनों सवाल के जवाब को पॉजिटिव में देने के बाद। अगर नेगेटिव में जवाब दिया तब नम कनौमतिल उरूस नहीं आता। हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस अफसोस, आई डोंट नो। अगर हाँ हाँ ला अदरी नेगेटिव में जवाब दिया तो नम कनौमतिल उरूस आएगा ही नहीं। उर्स मुश्तक की सूरत में उसके लिए आया जो तीनों सवाल का जवाब किसमें दिया हो, पॉजिटिव में। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता। क्या बात रही। तीनों सवाल का जवाब पॉजिटिव में नहीं दिया ना बेवकूफ ने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब पॉजिटिव में नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब पॉजिटिव में नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब इमाम आजम ने दिया, आज भी उर्स होता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया, आज भी उर्स होता है। गौसे आजम ने दिया, आज भी उर्स होता है। हजरत शाह रहमतुल्लाह दिए, आज भी उनका उर्स मनाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए किराम, अज़मते औलियाए किराम। तकरीर का एक हिस्सा कम है। कुरान आलमगीर निजाम है, कुरान बना करुण से, और एक रिवायत में कुरू से। पढ़ना पढ़ाना या मिलना मिलाना, वज तस्मीय में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना जान ली तो कुरान अरबी में, ये सब आप लोग को पता है। एक आदमी ने कुरान के बारे में, अच्छा कुरान जब नाजिल हुआ ना तो अपने लोग आज भी मिस्र में जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने लोगों के लिए साल में 2 पारे जाती है। हाफिज का कोर्स अपने यहाँ अलग से होता है, मिस्र में हाफिज का कोर्स नहीं होता, वो आलिम के कोर्स ही में हाफिज का कोर्स जाते हैं। अपने लोग तरावी पढ़ाने के लिए कुरान को समझते हैं ना, मिस्र वाले दलील के लिए कुरान को याद करते हैं, उनको मसाइल दलाइल के साथ में याद होते हैं। अपने लोगों के लिए साल में 2-3 पारे दाखिल है, अरबियों के लिए आज भी 6 पारे दाखिल है, एक साल में 6 पारे। आलिम बनते बनते वो हाफिज कुरान के हो जाते हैं, 6 पारे दाखिल है उन लोगों के लिए। अरब में क्या होता था, बाजारे वकास लगता था। अरबी अशार आप भी कहें, मैं भी, औरत भी, मर्द भी, चरवाहा भी, ऊंट चराने वाला, बकरी चराने वाला, और बहुत ना अरबी का मतलब ही होता है बोलने वाला, अजमी का मतलब गूंगा। हम लोग गूंगे, बोलने वाले तो वही लोग हैं। मेरे भाई, ऐसे में एक आदमी 1 साल 2 साल 3 साल, तो इंडिया का आदमी अपने नेपाल में आके 10-15 साल रह के और नेपाली पीवर बोलने लग जाए, पीवर नेपाली। हमरो देश नेपाल छ, हमरो देश में कौआ प्यारा बात छ, नेपाली पूरी प्यूरी तरह बोलने लग जाए, कोई पहचानना मुश्किल हो जाए। कहेगा मैं कोई नहीं पहचान पाएगा, मैं नेपालियों से अच्छी नेपाली नहीं बोलता, कोई पहचान नहीं, तफाखुर होने लगा। अजम का एक आदमी अरब में गया और वो जाके अरबी पीवर फसी हो बलीग अरबी बोल रहा। एक दिन किसी ने मदरसे खास में उसने कहा, क्यों भाई तुम अरबी हो के आजमी? कहा देख मैं तो हूँ आजमी, लेकिन इतनी अच्छी अरबी टॉकिंग करता हूँ, nobody can define। कहाँ का मैं हूँ ये कोई नहीं पहचान पाता। जब फला देहात में जा, एक आदमी के घर पे जाना, वो अगर पहचान लिया कि तू अजमी है तो फिर तू अपनी गलती का इकरार कर लेना, और नहीं पहचान पाया तो मैं तेरा दावा तस्लीम कर लूंगा, तेरा चैलेंज तस्लीम कर लूंगा। वो अरबी की ताकत का अंदाजा लगाएगा। वो गया देहात में, दरवाजे को न किया, भाई साहब अंदर से एक बच्ची आई, कहा आईना अबू, और ये तो है ना वाह मेरा बाप का है, आई वांट टू मीट हिम, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बच्ची जवाब देती है, अभी फाइल अल खयाती फैदा फाल फयुफा, बाउंस कर गया उसके। बच्ची छोटी सी बच्ची भाई, 7 साल की बच्ची, वो फिर पूछता आईना अबू पूरी तो है ना वाह तेरा बाप का, मैं मिलना चाहता हूँ। उसने फिर कहा अभी फाइल अल खयाती फैदा फाल फयुफा, मैंने कहा ना अभी फाइल अल खयाती। फिर वो तीसरी बार बोलता, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ी क्या बोल दी बच्ची। तीसरी बार आईना अबू कोई तो आना वाह
तब अंदर से माँ बोलती है, बेटी कौन है दरवाजे पर? बार बार उरीदो अनबूत बोल रहा, कौन है? बच्ची जवाब देती, 6 साल की बच्ची, लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा। अब सोचे उस बच्ची का ये हाल है तो बाप तो खेत गया, सूरज ढलने के बाद वापस आया। अभी फाइल अल फयाफी, मेरा बाप खेत गया, फायदा फाल पे होता, सूरज ढलेगा वापस आ जाएगा। अरबी का ये हाल है। ऐसे में कुरान बोलता है, फातू बिमिस्ली अला यातू बिमिस्ली हादा कुरान, इसके मिसले लाके बता। और अब जानता है कि कोई ला नहीं पाएगा कुरान की तरह, तो दावा में थोड़ी सी नीचे तस्वीर, फातू बेआशारे सूरत मिस्ली, 10 सूरतें लाके बताओ, ये भी नहीं कर सकता तो दावा में और तकसीम कर दी गई, फातू बिसूरतिन मिस्ली, एक सूरत लाके बताओ। और ये भी नहीं कर सकते क्योंकि रब जानता है, और तकसीम कर दी गई, फलियतु बिहदीसिन मिस्ली, एक ही बात लाके बताओ, एक ही बात कुरान की तरह लाके बताओ। और ये भी नहीं कर सकते। और जितना इल्म सब मिल जाओ और एक एक कलमा मिल करके बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1948 में लिखा, वो भी तन्हा नहीं, पूरी कंपनी थी, पढ़े लिखे लोगों की कंपनी थी, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के बाद एबल टू चेंज है, एबल टू तरमीम है, एबल टू तब्दील है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव ने पास्ट को देखा नहीं, फ्यूचर मौजूद नहीं, प्रेजेंट उसके सामने, माजी में जिसने चोरी की सजा जेल, फ्यूचर में कोई करेगा कि नहीं करेगा ये उसे पता नहीं, क्योंकि वो इंसान है, फ्यूचर को नहीं देखता। इसीलिए उसके कानून को बदलने की जरूरत पड़ती है, और मोदी ने आके बदल भी दिया, कल होके कोई और आएगा फिर बदलेगा। अच्छा, बदलने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, नादरा खां भी आके बदल गया, जिसको जहां से मर्जी हो हाशिया लगाए, क्योंकि इंसान ने लिखा है ना। दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशन 208 कंट्री है, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने कॉन्स्टिट्यूशन है सब एबल टू चेंज है, सब काबिले तब्दील है, सब बदलने के काबिल है, क्योंकि लिखा इंसान ने है, और इंसान पास्ट को देख नहीं सकता, फ्यूचर में होता नहीं, प्रेजेंट उसके सामने में होता है, और जिसके सामने प्रेजेंट होगा फ्यूचर से वो जाहिल होगा, माजी से वो नाआशना होगा। इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिहालत पर मबनी है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जिहालत पर डिपेंड है, टर्बन का कॉन्स्टिट्यूशन जिहालत पर डिपेंड है। मगर सुने, इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बदल सकता कि नाज़िल किया रब ने, जुबान मुस्तफा की, लिखा सहाबा ने, और रब की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है, माजी भी हाल है, मुस्तकबिल भी हाल है। इसलिए दुनिया का हर निजाम बदला जा सकता है, निजाम मुस्तफा बदला नहीं जा सकता है, दुनिया का हर कानून बदला जा सकता है, मुस्तफा का कानून नहीं बदला जा सकता। और सुन, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और हाकिम, तू बात करना बदलने की, मुसलमानों से ये उम्मीद न रखना, क्योंकि मुसलमान आज भी मुहर्रम का जब चांद निकलता है तो लाठी लेके अखाड़े में उतरता है, और उसका उस्ताद उन्हें लाठी तलवार खेलना सिखाता है, और सिखाने से पहले, शुरू करने से पहले मखसूस अंदाज में प्रैक्टिस होती है, पाँव आगे पीछे किया जाता है, और फिर उसे ये शेर पढ़ के सुनाया जाता है। 3-4 साल की उम्र है और ये शेर सुना दिया जाता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला। एक आदमी, कब की बात बता रहा हूं आपको, 1400 साल पहले एक आदमी आया हजरत उस्मान गनी के पास, हजरत एक नुक्ता हटा दीजिए ना कुरान शरीफ से, बदले में सोने, चांदी, जवाहरात, अरब की खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल आपको देने के लिए तैयार। एक नुक्ता जानते कौन सा नुक्ता था? फलम्मा आता या अहल क़रियतिन इस्ततअम अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफू,
मूसा और खिद्र गांव में गए, गांव वालों से कहा, गांव वालों भूख लग रही, खाना खिला दो यार। फअबौ, इनकार कर दिया। सोच, ये इनकार करने वाले कौन लोग थे पता? बनी इसराइल, यहूदी नसरानी, ये क्रिश्चियन, ये जुडेजियम, ये अमेरिका और इजराइल वाले जो अपने नबी को खाना नहीं खिलाए। दुनिया में इंसाफ की बात है। जिसके घर से नबी भूखे चले गए वो इंसाफ की बात कर। आज अगर सैयद इख्तिशामुद्दीन आ जाए तो हम जूती को सर पे उठा के शान से चला करते हैं। यह हकीकत है कि नहीं? उलमा की जूतियां सीधी करते हैं बिन कहे बिन मांगे। हजरत नाश्ता कर लीजिए ना, खाना खा लीजिए ना, एक मेरी तरफ से, एक अब्बू की तरफ से, एक भाई की तरफ से। बनी इसराइल नबी को फअबौ का मतलब होता है खाना खिलाने से इनकार कर दिया। फअबौ अन युतय्यिबूह, उस नीचे कैसे करेंगे? अलिफ ज़बर आ, बा वाव ज़बर बौ, फअबौ। इनका उन लोगों ने कहा बात के नुक्ते को हटा दे, उसके ऊपर दो नुक्ते लगा दे तो बन जाएगा फअतौ अन युतय्यिबूह, खाना खिलाया। उस्मान गनी की बारगाह में क्रिश्चियन लोग हैं, यहूदी नसरानी, हजरत इसमें हम लोग की तौहीन हो रही है। अपने नबी को हम लोगों ने खाना नहीं खिलाया, तौहीन हो रही है। नुक्ते को हटा के ऊपर दो नुक्ते रख दो। उस्मान गनी फरमाते हैं जान दे सकता है मगर बात का नुक्ता नहीं दे सकता है। जान दे सकता है उस्मान, बात का नुक्ता नहीं दे सकता। ठीक उसी की औलाद पर तो 10 आयतें हटा, उसी की औलाद वसीम रिजवी 26 आयतें हटा। मेरे भाई एक बात बता दूं, ये जबरदस्त पेश और नुक्ते जो है ना, ये सब के सब बिदअत है। इन लोग का कहना यह है कि ईसाइयत में टेररिस्ट की बातें हैं, ज्यादती की, दहशतगर्दी की बातें हैं। सवाल यह है कि नुक्ते नहीं थे कुरान में, जबरदस्त पेश भी नहीं थे, हम नुक्ता और जबरदस्त पेश हटा देते हैं। अब पढ़ के बताएं वसीम रिजवी, अब पढ़ के बताएं परवीन को, पढ़ पाएगा कोई? नुक्ता हटा दे, बालमून यालमून तालमून, बा के नीचे से नुक्ता हटा दो। बिल्ला तिल्ला सिल्ला निल्ला क्या पढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। नुक्ता ही नहीं है ना, ये हकीकत है कि नुक्ता ही नहीं। बगैर नुक्ते के जो पढ़ने के काबिल हो वो मुजतहिद होता है और वो सही से समझ पाता है। जब जबान तालु से मिलकर तो पता होता है, बेवकूफ को काफ का मकसद नहीं पता और कहता है ये आयत इस माना की नहीं, ये आयत अबू बकर ने ईद कर दी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखें, ये यहूदियों की औलाद है, उस्मान गनी के पास गए। हम लोग उस्मान गनी की रूहानी औलाद है। उन्होंने दौलत और लड़की के बदले नुक्ते को नहीं बदला। हम कैसे कुरान को बदल सकते हैं? हम कैसे कुरान की तब्दीली बर्दाश्त कर सकते हैं? कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम सिर्फ और सिर्फ इंसान की किताब नहीं, मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात है, हाकिम कायनात है, कायनात की हर शय का रसूल नबी है, खालिक अल्लाह है और कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कुरान मुक़द्दस। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कुरान मुक़द्दस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इब्तिदाअन मदीना शरीफ अभी हिजरत नहीं किए, नबी हिजरत नहीं किए और एक सहाबी मुसाब बिन उमैर को भेजा। मुसाब बिन उमैर, आप मदीना शरीफ चले जाइए और क्या कीजिए जाके, अय्युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। आप जाइए, कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए और दीन समझाइए। 3 लफ्ज़ आया, कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए और दीन समझाइए। मेरे भाई ये कुरान है, याद रखिएगा। इसकी बुनियादी एक बात और बता दो, हमारे उलमा यहाँ बैठे हैं। कुरान शरीफ जहां लिखा हुआ होता है ये कागज है, ये कागज देख रहे हैं आप लोग, ब्लैक है। ये कागज बनता है रूट्स से, ट्रीज से, नबातात से, दरख्त छाल पत्तों से ये कागज बनता है। ये कागज सेम क्वालिटी, सेम टाइम, सेम मशीन, सेम दरख्त, सेम बेचने वाला, सेम खरीदार और उसके ऊपर लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या सीबीएसई का सिलेबस। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा। पढ़ने के बाद इंसान गया फर्स्ट में, 5th में, 10th में, ग्रेजुएट किया, बीयूएम में, MBBS, लॉ किया, राजदूत बन गया, एसपी कलेक्टर बना,
चला रहा है। वो पेपर के साथ क्या सलूक किया जोनी जोनी यस पापा के साथ? वो पेपर कहाँ है? बोले वो मेरी माँ ने तो भंडार में दे दिया। जहां वो 5वीं में गया, नर्सरी के पेपर कहाँ गए? भंडार में। ठेले वाले के दे दिया, ठेले वाले ने बदले में शक्कर दे दी, सोन पापड़ी दे दिया, चॉकलेट दे दिया। वो ठेला वाला ले जाके होटल वाले को दिया और होटल वाले ने कटिंग करके उसपे समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेचा। आपने खाया और कागज को थ्रू अवे फ्रॉम योर साइड, डस्टबिन में डाल दिया। कचरे की गाड़ी आई म्यूनिसिपैलिटी की और कचरे के गाड़ी में और गाड़ी को कचरे की जगह डंप कर दिया। ये सिस्टम है ना। जिसने पढ़ा वो कलेक्टर बना हुआ, 1 लाख तनख्वाह लेगा, मगर मोहसिन है जिसने पढ़ाया वो नाली में पढ़ा हुआ, नजासत में पढ़ा हुआ। भैया खा रहे तो बड़े मालूम नहीं कि तुमको जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज पेशाब की जगह, गंदगी की जगह, नजासत की जगह तुम्हारे खिलाफ एफआईआर। गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये जुर्म है ही नहीं, चले जाओ यहाँ से। एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी आपकी, गेट आउट। जानते हैं क्यों? जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ। जिसने पढ़ा वो 1 लाख का स्कॉर्पियो, आईफोन, प्लेन की सवारी फ्री में, क्वार्टर अलग से दिया जाता, बोनस अलग से मिलता है। सेम कागज, सेम दुकान, सेम टाइम, सेम खरीदार, सेम बेचवा, मगर उस कागज पर जोनी जोनी यस पापा की जगह जामिया अहले सुन्नत निजामिया वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखवाया और रहमान रहीम लिखवाया, कुरान मुक़द्दस की आयतें लिखवा दी। अब आलिम की बात नहीं कर रहा मैं, हाफिज की बात भी नहीं कर रहा, मुफ्ती की बात भी नहीं कर रहा, मुजद्दिद गौस व अब्दाल सहाबा की बात नहीं कर रहा। रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। बात समझ में आ गई? तेरी वैल्यू जीरो इसलिए है कि तुमको जिसने पढ़ाया वो नजासत में पढ़ा हुआ है, मगर जिसने हमें हाफिज बनाया, जिसने आलिम बनाया, उसको सीने से लगाते, सरों पे रखते हैं। वो कुरान का एक टुकड़ा जमीन पे गिर जाए तो उसे उठा के खुशबू लगा के ऊंची जगह रखते हैं। कागज ने उस कागज से पूछा तेरी अजमत बढ़ते से गई। रब बोलता है बगैर हाथ धोए तुझे छूना हराम है। मैं नजासत में पड़ा हुआ, मगर तेरी अजमत का ये हाल है कि रब तेरे बारे में बातें कर रहा है। तो उस कागज ने जवाब दिया तेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा है, ऑक्सफोर्ड जेएनयू कन्वेंशन पायस, लेकिन फलावर वालों ने तुझे पढ़ाया, इस्तेमाल किया है, इसलिए तू नजासत में है। मुझे जिसने पढ़ाया वो आलिम हाफिज कारी है और मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी है। रब ने कुरान के सदके में मेरा मकाम बढ़ा दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। मेरे भाई, कुरान से बढ़ के कोई वकालत नहीं, तो आलिम से बड़ा कोई वकील हो ही नहीं सकता। कुरान से बढ़ के कोई फैसला नहीं, तो मुफ्ती से बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो ही नहीं सकता। कुरान से बढ़कर कोई हुक्म नहीं, तो फिर ताजुश शरिया से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। पहचाने अपने आप को। एसपी कलेक्टर 50 साल रह के भी वजू के फराइज नहीं बताए, मगर 5000 तनख्वाह लेकर 5 दिन के अंदर में बच्चों सबके सब खड़े हो जाओ लाइन से। वजू के 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। बच्चों लाइन से खड़े हो जाओ। दूसरे दिन गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन में पानी बहाना। 50 साल 50 लाख में कलेक्टर ने पाक होने का तरीका नहीं सीखा। 5000 में 5 महीने में आपका बेटा वुजू और गुस्ल का तरीका सीख गया। ईमानदारी से बताए हुए इस बेटा कौन बेटा? अय्युम कुरान मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ भेजा। जाइए आप मदीना शरीफ में, नबी नहीं गए अभी मदीना शरीफ, आप जाइए मदीना शरीफ, कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। लिहाजा हम सब कुरान सिखाएं, वाहिद कुरान, वाहिद, जो पढ़ने का भी सवाल है। मगर हाँ, यहाँ कुछ लोग शादी करने जाते हैं ना, तो ये देखते हैं कौन मुझे 10 लाख देगा, कौन 20 लाख देगा, कौन गाड़ी देगा। अपाची तो
जाहिल से जाहिल मुसीबत बाती मांग रहा है। लेकिन मेरे भाई आप सोचे जरा, जस्ट इमेजिन, फ्रिज बेटी लड़की का, पलंग लड़की की तरफ से, कूलर लड़की की तरफ से, अपाची लड़की की तरफ से, 4-5 लाख कैश लड़की की तरफ से, तो अब रिजालों को हुआ मूल होगा या अन्निसा को हुआ? खा पी आप रहे होंगे तो आप हाकिम होंगे या बीवी हाकिम होंगे? मर्द वो है जो कमाए और नानो नफका का हक अदा करे। नानो नफका औरत पे वाजिब नहीं, मर्द पे वाजिब है। मर्द पे अगर मर्द है तो मैदान में उतरे और कहे तेरे लाख अपाची सब तेरे पास रख, मर्द मैं हूं, मैं कमाऊंगा, तुम घर में पकाना, मैं बाहर से काम करके आऊंगा, तुम घर में प्यार से बैठ के खिलाना, घर का निजाम तेरे हवाले, बाहर का निजाम मेरे हवाले। अगर ये मिजाज बना लिया तो आज भी माशरे में इस्लाम का बोलबाला नजर आए। हम मर्द है भाई साहब, हम मर्द है, औरत थोड़ी है जो तुम्हारी कमाई खाएगी। हम अपना पैसा लगाए, हम मर्द। शादी में हाँ, पढ़ाई के मामले में एक आदमी तो ऐसा कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया तो वो भी बहु डॉक्टर नहीं ढूंढ रहा। डॉक्टर इक्वल टू इक्वल, बोथ आर इक्वल होना चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। बात सही बोला, दो गधे आपस में रह सकते, एक साथ गधा थोड़ी रह सकते। बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होना चाहिए। मेरे भाई ना डॉक्टर की बीवी डॉक्टर भी नहीं होनी चाहिए। शादी से पहले आप ये देखें कि लड़की दीनदार है कि नहीं। कुरान शरीफ तफसीर के साथ में, कंजुल ईमान के साथ में पढ़ी है कि नहीं। लोग आमतौर से जाके देखते हैं कुरान शरीफ मेरी बेटी पढ़ी ना, अच्छा पढ़ी है आपकी बेटी कुरान शरीफ, तब तो कोई मसला नहीं। दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी। ये किसने कह दिया? कुरान पढ़ना दीनी तालीम नहीं है, किसने कह दिया? कुरान समझना दीनी तालीम, कुरान पढ़ना ये फर्ज उलूम हासिल नहीं होता इससे। वुजू में कितने फराइज है ये आप कुरान पढ़ के बता थोड़ी सकते हैं, ये तो अनवारे शरीयत में लिखा हुआ है। इसलिए आपको उर्दू पढ़नी पड़ेगी। तो कोई सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ता और ये सोचता है कि मैं दीनी तालीम है मेरे पास, ये शैतान का फ्रेब, झूठ बोल रहा, वो शैतान झूठ बोलवा रहा। दीनी तालीम नहीं है अभी उसके पास, हर उलूम सीखना पड़ेगा। इसलिए अरबी के साथ साथ ही उर्दू। तो जाए लड़की देखने तो ये देखे कि अरबी के साथ साथ ही उर्दू पढ़ी है कि नहीं, हदायत बख्शिश पढ़ना जानती कि नहीं, कुरान शरीफ तफसीर कंजुल ईमान पढ़ना जानती कि नहीं जानती। अगर हाँ तब शादी करें, क्योंकि अगर ऐसी लड़की से आप शादी करके लाए, अब उसके पेट में बच्चा है तो अब वो हदायत बख्शिश उल्टा करके ये पढ़ेगी क्या गधे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पेट में है वो माँ ने पढ़ा, बच्चे ने सुन लिया पेट में, और सुन के सिर्फ भुला नहीं जाता, वो बच्चा याद भी रखता है। पेट में बच्चा है, माँ ने ये शेर पढ़ा, बच्चे ने याद कर लिया। अब जिस बच्चे को ये शेर बचपन माँ के पेट से याद हो, वो कभी वहाबी बन सकता है, वो कभी देवबंदी बन सकता है, वो कभी आरएसएस बजरंग के चुम्मा में आ सकता है। इसलिए यहां से शुरू करें और याद रखिए, फार्मूला देके जा रहा हूं। तारीख इस्लाम ये बताती है कि कभी भी जींस पैंट टी शर्ट एक्टिवा और फोन और कॉलेज गर्ल के पेट से कभी भी कोई वली पैदा नहीं हुआ है। वली हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा होता है, हमेशा वली पर्दे वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए इस बात को खास तौर से ध्यान रखें। और हाँ, नबी ने फरमाया मुसअब बिन उमैर को चाहिए मदीना वाले को कुरान पढ़ाइए। अभी क्या होता है हमारे नेपाल में, अगर बाप का इंतकाल हो गया, मौलाना साहब अलजामियतुल बरकातिया लिल बनात 2 कुरान खत्म करवा दीजिएगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया, और बेटा वही लंदन में, कतर में, और 40वां में मैं आऊंगा तो 2 कुरान का सवाल, और 40वां में आया और 5 लाख रुपए का इसाली सवाल 40वां किया। कितने का? हजरत मेरी तरफ से 10 पेटी तमाम कपीर वस्तु के मस्जिदों में बांट दे, बराए साले सवाब मरहूम खोला। वो पेटी गई मस्जिद में रखी हुई। अच्छा, एक आदमी नहीं देता, 2 3 4 5 6 40 50 60 100 पेटियां मस्जिद में रखी हुई। पढ़ेगा कौन जो आपने पेटी दी? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था, तो आपके बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़े? कमाता दीनों तो दान, कुरान शरीफ में की फुट है। दुनिया बेवकूफ है,
दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बाप के नाम से वो सब कुरान शरीफ पढ़ के बचेंगे। इसलिए सब पेटी चंद सालों के बाद मुफ्ती साहब के पास फोन आएगा, मुफ्ती साहब 50 पेटियां जमा हो गई है, पारे को सीधा हो गए, क्या करूं, दफन कर दूं क्या? बोले हाँ दफन कर दो, कब्रिस्तान में ले जाए। यही पेटी कब्रिस्तान में, ये फैक्ट बता रहा हूं। इसलिए देने से पहले फोन लगा है सज्जद गुलाम हुसैन मजहरी, मदरसे में किस चीज की जरूरत है, मस्जिद में किस चीज की जरूरत, कहा तामीर अदब अव्वल की, अब तामीर अदब अव्वल दे। पेटी दिया, पढ़ा नहीं, किसी ने सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं, देने का सवाब अलग है, पढ़ने का सवाब अलग। लेकिन तामीर अदब अव्वल दिया मस्जिद में, इमाम साहब ने मकतब में बच्चे को तामीर अदब अव्वल पढ़ाया, वही बच्चा एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा अशरफिया मुबारकपुर फजीलत की दस्तार लिया। जब तक वो आलिम दीन जिंदा रहेगा, आपके बाप को सवाब मिलता रहेगा। क्या बात रही। 4 रुपये की तामीर अदब है, सवाब इतना बड़ा, जानते क्यों? क्योंकि पूछ के काम किया, उलमा को हाकिम और लीडर समझा आपने, सिर्फ फज्र ज़ोहर असर मगरिब का इमाम नहीं, लाइफ स्टाइल का इमाम समझा आपने, इतना बड़ा सवाब। 40वां में आने के बाद 5 लाख रुपए का 40वां होगा। मेरे भाई लंदन में आप गए या कतर में तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, कतर ही से वाली साहब बूढ़े हैं, कुरान शरीफ नहीं पढ़े, ये हदीस शरीफ में क्या आया, मदीना में जाइए और कुरान पढ़ाइए। आप गए कतर में, इमाम साहब को फोन लगा, इमाम साहब मेरे वाली साहब को रोजाना 1 घंटा दीजिए, बेहतरीन 40वां का तरीका बता रहा हूँ, 1 घंटा दीजिएगा, अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़ाइएगा, बताइए 1 घंटे की क्या तनख्वाह होगी। इमाम साहब ऐसे भी सीधे साधे होते हैं, आप जो दे दीजिए, ठीक है मैं 5000 रुपये महीना दूंगा, 1 घंटा पढ़ाइएगा बस, और ये बताइए कितने महीने में उर्दू अरबी दोनों पढ़ा देंगे? क्या 6 महीने में उर्दू अरबी दोनों? 6 को 5 से इंटू करे तो कितना बनता है? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में 6 महीने में आपके वालिद साहब जाहिल थे, कुरान शरीफ कंजुल ईमान के साथ पढ़ना 6 महीने में आ गया, 6 महीने। इस पीरियड में अगर आपके वालिद साहब इंतकाल करते हैं तो हदीस में आता है कि वो शहीद है। इस पीरियड में आपके वालिद साहब चलते हैं तो हदीस में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर के पांव के नीचे। आपने जो 40वां में 5 लाख खर्चा किया वो मुस्तहब है, फर्ज नहीं है। कहां लिखा फर्ज? मुस्तहब है। मकबूल है या मरदूद ये कोई नहीं बोल सकता, मकबूल है या मरदूद ये कोई नहीं बोल सकता। रब की मशीयत है, रब चाहे कबूल कर ले, रब चाहे तो आदिलतुन नासिबतुन तस्लानार हामिया, रब की मशीयत, वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो ठुकरा दे, मगर 5 लाख खर्चा कबूल की गारंटी नहीं। ये 5-6 महीने आपने पढ़ाया 5,000 रुपया दे करके, हदीस बोल रही है कि वो शहीद है, और हदीस बोल रही है कि जो तलबे इल्मे हक की राह में इंतकाल किया, रब्बे कदीर उसका हश्र शहीदों के साथ में फरमा दे। ये यकीनी है, वो गैर यकीनी। अब बताइए कौन सा 40वां बेटर है? ये वाला। मरने से पहले बाप को कंजुल ईमान पढ़ाए, ये वाला 40वां उस वाले 40वें से अफजल है। लास्ट पॉइंट पे जा रहा हूं, अय्युक़रिअहुमुल कुरान, कुरान पढ़ा। कपिलवस्तु का कौन सा आदमी है जो ये नहीं जानता है कि कुरान में सब कुछ है? सब लोग जानते हैं ना भाई, कुरान में सब कुछ है। जुम्मा में खड़े होके हमारे इमाम साहब आधा घंटे तकरीर करते हैं। आपको लगता है कि मैं बड़ा खतीब हूं? मैं तो एक ही तकरीर पूरे इंडिया नेपाल में करता हूं। हमसे बड़े खतीब आपके इमाम साहब, हर जुम्मा में नई तकरीर मेहनत करके करते। क्या बात है। उनकी तनख्वाह मुझे 20-25 हजार दिया जाता, उनको 10,000 दिया जाता। ये इंकलाब का तरीका होगा। नमाज़े जनाजा, कान में अजान, मसाइल वो बताए, रोजमर्रा आप सवा देख करके ज़ियारत करें, बच्चों की तरबियत आप करें, ईमानदारी से बताएं। एसपी कलेक्टर ने आपको मुस्लिम बनाया है या ये 5,000 वाले उलमा ने मुस्लिम बना के रखा है? ईमानदारी से बताएं। नबी की बात बुखारी क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल एसपी कलेक्टर बताता है या ये उलमा मस्जिद से बताते? इनकी तनख्वाह 50,000 कर दे, इसमें जो मुफ्ती हो उनकी 80,000 कर दे, जो आलिम हो उनकी 20,000 तनख्वाह करे। इसमें भी कैटेगरी है ना भाई, DUMS, MBBS, MD, GM, IS, IPS, सबके दर्जे होते हैं, सबकी फीस अलग होती है। हर कुर्ता पजामा टोपी वाले अल्लामा बन जाएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे ना।
اس میں بھی ناظرہ خان ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محقق ہے، مدبر، مجدد ہے، مفسر ہے، مشرح ہے، سب کی الگ الگ تنخواہ ہونی چاہیے نا پرو۔ اس لیے میرے بھائی نظام سسٹم کو چینج کرے، اپنے امام صاحب کی تنخواہ بڑھا دے، یہ یقین جان لے کہ دین کے ایس پی کلیکٹر یہی ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں نبی سے جوڑ کے رکھا۔ ایو کرے اہو قرآن، مصعب بن عمیر آپ جائیے قرآن پڑھائیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامِ، اسلام سکھائیے، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، دین سمجھائیے۔ پہلے یہ سنیں، مصعب بن عمیر گئے مدینہ شریف میں، بس سوچے کہاں جاؤں کدھر جاؤں، بس ایک کنواں نظر آیا، وہاں لوگ بیٹھا کرتے، کنواں کے پاس کھڑے ہو گئے اور سیدھے درس دینا شروع کر دیا، اللہ ایک ہے، نبی حق ہے، بت جھوٹے ہیں، قرآن شریف کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں مدینے کا لیڈر سعد بن معاذ نے اپنے اسسٹنٹ اسید بن حزیر کو بھیجا، یہ نیزہ لے اور جاتے اس کو ٹپکا کے آتے، ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو، جا مار دیا۔ نیزہ اٹھایا اسید بن حزیر نے۔ یاد رکھیے گا، یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ روئے زمین پہ 8 سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، پوری دنیا میں 8 سے 10 مسلمان ہیں بس، یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ ایسے ماحول میں جا کے ڈیرنگ کے ساتھ میں بغیر ایڈریس اور پتے کے کنویں پہ شروع ہو جانا، نیزہ لے کے اسید بن حزیر، یہ سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنانا کہاں سے آیا، تو کیا اسپیچ دے رہا، بنکر، یہ جملہ گالیاں دینا شروع کیا انہوں نے، کس کو، مصعب بن عمیر کو گالیاں دینا شروع کی۔ اپنے لوگ کو گالی دیں گے تو کیا کریں گے، ہمت ہار کے بوریا بستر اٹھا کے گھر چلے جائیں گے، مگر نہ، مصعب بن عمیر کا جواب ہے، اوتجلس وتسمع لی ان رضیت امرا قبلتا وان کرہت فعزلنا عنک ما تکرہ، کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے میری باتیں نہیں سن سکتے، اچھی لگے قبول، بری لگے تو خود ہی چلا جاتا۔ یہ جملہ سن کے جو نیزہ لے کے مارنے آیا تھا، نیزے کو زمین پہ گاڑا تھا، انصفتا، تو نے انصاف والی بات کی، چل بول تیری بات سن لیتا ہوں۔ مصعب بن عمیر نے جب قرآن کی تلاوت کی ہے تو حلاوت تلاوت قرآن نے کفر کی بلڈنگ کو زیر و زبر کر دیا، متزلزل ہو گیا اسید بن حزیر، نیزہ کو زمین سے اٹھایا اور سیدھے الٹے پاؤں مدینے کی طرف، اور لیڈر معاذ بن سعد بن معاذ سے جا کے کہا، حضرت مجھ سے نہیں سننے والے، آپ ہی جا کے سمجھا کیا اور مار کے آئے ہوں۔ سعد بن معاذ مین ڈور، جیسے مکے کا ابو جہل ڈور، مکے کا ابو جہل ڈور، انڈیا کا وہ ڈور، نیزہ اکھاڑا اس نے، تلوار لی سعد بن معاذ نے، اور سیدھا مصعب بن عمیر کو مارنے کے لیے، وہی انداز، وہی تیور، سیدھے سارے لوگوں کو بیوقوف بنانا، کہاں سے آیا، بنکر۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا، اوتجلس وتسمع لی ان رضیت امرا قبلتا وان کرہت فعزلنا عنک ما تکرہ، انصفت، انصاف والی بات کی، نیزے کو زمین پہ گاڑا، کہا بول تیرا میسج کیا ہے۔ مصعب بن عمیر نے ان یقرأہم القرآن پر عمل کیا، قرآن کو پڑھ کے سنا، جو ہی قرآن کو سنا، تلاوت میں آج بھی وہ حلاوت ہے کہ کافر کی بلڈنگ متزلزل آج بھی ہو جاتی ہے۔ علامہ ارشد القادری نے لالازار کے اندر لکھا ہے کہ لکھنؤ کے کمشنر کی بیٹی قاری صاحب کی تلاوت ہی سن کے دھیرے سے قاری صاحب کو بلایا، قاری صاحب میرا باپ تو کرسچن ہے، وہ مانے گا نہیں، لیکن آپ تو مجھے کلمہ پڑھا دیں، میرا باپ تو شیعہ قبرستان میں، کرسچن قبرستان میں دفن کر دے گا، آپ مجھے رات میں اٹھا کے سنی قبرستان میں لے آئیے گا۔ پورا واقعہ ہے جو آپ کے امام صاحب بتائیں گے آنے والے جمعہ کو۔ حاصل یہ کہ تلاوت میں آج بھی وہ جان ہے، آج بھی وہ جان ہے۔ سعد بن معاذ نے جو ہی تلاوت قرآن کو سنا مصعب بن عمیر سے، حضرت یہ آپ کا میسج قبول کرنے کی پروسیسنگ کیا ہے، کرنا کیا پڑے گا، کبھی سمپل، یہ کنواں ہے، نہائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، ہو گئے آپ مسلمان، نہایا، 2 رکعت نماز پڑھی، مسلمان بنے، اور سیدھے تلوار نیزہ لے کے مدینے کے سب لوگوں کو جمع کیا، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جوان، سب کے سب سن لو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا بہترین آدمی،
बेहतरीन लीडर है। कहा कि सुनो, तुम में से कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, उस वक्त तक मैं बात नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद के रब पर ईमान लेके नहीं आ जाते हो। तारीख बताती है मेरे भाई कि नबी के जाने से पहले मदीना में तकरीबन 10,000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके थे। सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि कुरान पढ़ाना, ये आया कुरान पढ़ाना, हर सवाल का जवाब कुरान में, बात खत्म हो जाती है। आपके इमाम साहब कहते थे सब कुछ है कुरान में। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, जब सब कुछ है कुरान में तो कोर्ट क्यों जाते लोग? और खुसूसन तलाक के मसले में लेके पहली बार इंदौर की शाहबान हो गई, नतीजतन तलाक सलासा पे बैठ गई औरत ना, मुस्लिम ना। ऐसी आप इरादा करें कि नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी बेटी का बारी मामला आएगा ना तो आप खुद चले जाएंगे ना। भाई दीन के एसपी, कलेक्टर, जज हमारे हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती है। जो कोई इस्लाम के खिलाफ है उसको जूती के नोक पे उड़ा दे। कुरान से बढ़ के कोई कोर्ट नहीं हो सकता। इस्लामी मामलात में हमें कोई नहीं चाहिए, हमें हमारी शरीयत, हमारे उलमा का। ये याद रखे और जहन में बैठा करके रखे, कुरान से बढ़ के कोई संविधान नहीं। जब कुरान पढ़ाना तो अलग से इस्लाम सिखाना क्यों आया? इस्लाम की तारीफ ये आई है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ठीक है भाई। और जब इस्लाम की बात आ गई तो दीन समझाना ये क्यों आया? 3 लफ्ज आ गया, कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए, दीन समझाइए। यहीं से पता चला कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं। गांधी भी कुरान पढ़ता था, गांधी भी कुरान पढ़ता था, शिया लोग भी कुरान पढ़ते, काफिर भी कुरान पढ़ता, इसलिए उसे इस्लाम सिखाइएगा। अब इस्लाम की बात है, अब इस्लाम और कुरान बात तो कंप्लीट हो गई ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कुरान थ्योरी है, इस्लाम प्रैक्टिकल है। उसके बाद दीन समझाइएगा। और ये दीन को समझते 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 मुझे एक बात समझ में आती है, दीन समझाइएगा ये क्या है? मेरे भाई, नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है। और कीजिएगा, नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है। लेकिन हजरत अबू बकर जब सफरे हिजरत में कभी नबी के आगे हो जाते थे, कभी नबी के पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। पीछे चलना ये इस्लाम है। अबू बकर, जब पीछे चलना इस्लाम है तो आप नबी के आगे कैसे होंगे? जवाब दिया कि मुझे जब लगता था खतरा पीछे से है तो पीछे होता था, जब लगता था हमला दाएं से होने वाला तो नबी के दाएं तरफ हो जाता था, और लगता था कि हमला सामने से आ रहा है तो नबी के आगे हो जाता था, ताकि सामने से आने वाला तीर अबू बकर की छाती तक रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना होने पाए। सुभान अल्लाह। पीछे चलना ये इस्लाम है, लेकिन हमला नबी पर हो तो आगे बढ़ जाना तफक्कुह फिद्दीन है। क्या बात रही, तफक्कुह वयुफक्किहुहुम फिद्दीन। कुरान पढ़ना, मदीने वाले नमाज पढ़ रहे थे नबी के जाने से पहले, कुरान भी पढ़ रहे थे, तकबीर भी, सूरह फातिहा भी, कुरान की आयतें भी पढ़ रहे थे। मगर पूरे कुरान और हदीस में कहीं ये नहीं आया है कि नबी आए तो तुम इस्तिकबाल करना और ताज़ीम करना। वयुफक्किहुहुम फिद्दीन। ये मुसाब बिन उमैर ने बताया कि सिर्फ कुरान पढ़ना और इस्लाम पर अमल करना ये काफी नहीं है। इन सब की जान मोहब्बत मुस्तफा और अज़मत मुस्तफा है। यही वजह है कि 10,000 लोग नबी के जाने से पहले मदीने में कलमा पढ़े हैं, मक्के से नबी जा रहे हैं, और मदीने वाले खजूर पे चढ़ के, छत पे चढ़ के, रास्ते में आके ये कह रहे थे, ताला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। पता ये चला कुरान पढ़ना, इस्लाम सिखाना, और इनमें सबसे असल है मोहब्बत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, इश्क़ मुस्तफा। इसी को मेरा इमाम, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, अल्लाह की रज़ा, सहाबा की रज़ा, इमाम अहमद रज़ा तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं, लिख, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग। सुभान अल्लाह।
وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ. میرے بھائی الحمدللہ العظیم آج بھی ہمارے درمیان سادات اور علماء ہیں. آپ کو لگتا ہے نا کہ کرناٹک میں مسکان کے ساتھ حجاب کا مسئلہ ہوا ہے؟ مجھ کو نہیں لگتا یہ آج کا میٹر. 1400 سال پہلے جنگ بدر میں یہی یہودی نے ایک عورت کو ننگا کر دیا تھا. نبی جب مدینہ گئے تو 3 قبیلے تھے. ایک بنی قینقاع، دوسرا بنی نمیر، تیسرا بنی قریظہ، اور تینوں یہودی قبیلے تھے. تینوں نے نبی سے بغاوت کی اور بنی قینقاع والے نے خصوصاً صحابیہ کو ننگا کر دیا. مسلم خاتون کو ننگا کر دیا. بدلے میں ایک مسلم وہ خاتون چلائی بچاؤ بچاؤ. ایک مسلم کی غیرت کے گال کے زوردار تماچا، تلوار نکالا اور یہودی کی گردن. بدلے میں ان کو شہید کر دیا گیا. نبی آئے، نبی نے کہا شرم و حیا نہیں آتی تم لوگ عورت کے کپڑے اتار دیے، حجاب اتار دیے، نقاب اتار دیے. بجائے شرم و حیا کے انہوں نے جنگ کی چیلنجنگ کر دی. چیلنج جنگ کا کر دیا. صحابہ نے ایکسپٹ کر لیا. جنگ بنی قینقاع وجود میں آتی ہے. غزوہ بنی قینقاع. ڈر کے مارے یہودی سوراخ میں داخل ہو گئے، قلعہ میں بند ہو گئے. 15 دن تک صحابہ نے محاصرہ کر کے رکھا ہے. 15 دن تک. بالآخر جب کھانا پینا جب سکڑنے لگا، اوزار ڈال دیا. ہم ہار گئے، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. نبی نے ان غداروں کو وطن سے بھگا دیا. مدینہ سے بھگایا تو یہ لوگ کہاں گئے پتہ آپ لوگ کو؟ شام. شام میں 3 ملک ہیں، اردن، فلسطین اور لبنان. یہ لوگ شام میں آئے اور دھیرے 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 فلسطین پہ قبضہ کر کے اسرائیل بنایا. انڈیا کا RSS اسرائیل جاتا ہے، وہاں سے ٹریننگ لے کے مسکان کے حجاب کو اتارنے کی بات کرتا ہے. یہ دراصل لنک وہاں سے جڑی ہوئی، آج کی بات نہیں. 1400 سال پہلے یہودیوں کا دماغ چل رہا ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بول رہا ہے کہ یونیفارم کو فالو کیا جائے، اسکول سلیبس اور سسٹم اور لباس کو فالو کیا جائے. غلام جیلانی ازہری نیپال کے سنی مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ سنو، جب کانسٹیٹیوشن یہ بولے کہ اسکول کے یونیفارم کو فالو کیا جائے، اسکول کا پرنسپل بولے یونیفارم کو ماننا ہوگا، تب ایسے ماحول میں غلام مسلمانوں نے نیپال کو پیغام دیتا ہے ایسی اسکول کو جوتی کے نوک سے اڑا دو. اسکول تم بناؤ، کالج تم بناؤ، میڈیکل تمہارا ہو، اب یونیفارم بھی تمہارا ہوگا. اس لیے اپنی اسکول میں یونیفارم ہم بنائیں گے اور پھر کہیں گے سن، ہمارا یونیفارم چٹی نہیں ہوگا، ہمارا یونیفارم بنیان نہیں ہوگا، ہمارا یونیفارم اسکارٹ نہیں ہوگا، ہمارا یونیفارم مردوں کے لیے جبہ ہوگا، عورتوں کے لیے نقاب حجاب فاطمہ. بے شک سبحان اللہ. یہ جواب ہے. الحمدللہ سید غلام حسین مظہری کے جواب میں نیپال مسلم یونیورسٹی کا قیام کر رہے ہیں. یہ ہلکے میں نہیں لے. ہماری یونیورسٹی ہوگی، ہمارے ٹیچر ہوں گے، ہمارے سلیبس ہوں گے، ہمارا قانون ہوگا، ہمارا سسٹم اور نظام ہوگا، بائیلاج ہمارا ہوگا، تھیوری ہماری ہوگی، پریکٹیکل ہماری ہوگی. اور اس اسکول میں جانگر من نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے ابتدا ہوگی اور سورہ ناس پہ انتہا ہوا. یہ یونیورسٹی ہے نیپال کی. اور آپ ضرور ایک کام کیجیے، وہ یہ کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو مخالفت مت کیجیے. یہ ذہن میں رکھیں، کچھ نہیں کر سکتے تو مخالفت مت کیجیے. چند سالوں کے بعد انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک علامہ مشتاق احمد نظامی کو میں نے وہاں دیکھا نہیں، یہ کام دیکھا. غریب نواز دیکھا. ایک دن کرناٹک ہبلی میں تقریر کرنے گیا تو پتہ چلا نظامی سڑک کس نے بنایا؟ بولا علامہ مشتاق احمد نظامی. جام نگر بیڑی میں تقریر کرنے گیا تو وہاں والوں نے بتایا کہ حضرت کو ہم نے خط لکھا، محرم میں 10 دن آئیے نا، تو خط کا جواب 4 لکھنے سے 1 دن پہلے آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. 10 دن حضرت وہاں دین کا کام کیا. پورے انڈیا میں علامہ مشتاق احمد نظامی جیسا خطیب گزرا موجودہ خطبہ پر احسان عظیم ہے. موجودہ خطبہ پر وہ انڈیا کے نظامی علامہ مشتاق احمد نظامی. یہ یہاں کے علامہ مشتاق احمد برکاتی ہیں. الجامعۃ البرکاتیہ للبنات جن کی زندہ دلیل ہے کہ بندہ کام کا ہے، نام کا نہیں. کام ہونا چاہیے. حافظ ملت علیہ الرحمت زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آ رہا. لیکن میرے بھائی ایک بات بتاؤ،
हाफिज मिल्लत ने अशरफिया बनाया, अशरफिया मुबारकपुर में क्यों, कपिल वस्तु में क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ जानते क्यों नहीं है? यहाँ हाफिज मिल्लत एक दिन गांव में गए, एक मुबारकपुरी में, भाई साहब बड़ा मदरसा बना रहा हूँ, थोड़ा सा चंदा दे दीजिए। एक आदमी घर गया और 37,500 रुपया ला के दिया। कितना? 37,500 रुपए। कहा ये घर की पूरी दौलत है, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं। कहना ऐसे में चंदा नहीं करता, थोड़ा सा रख ले, थोड़ा सा कहना पूरा लेना पड़ेगा। कहना रोने लगे हाफिज, कहना पूरा लेना ही पड़ेगा आपको। हाफिज मिल्लत जिद पर नहीं लूंगा। तब वो आदमी दलील देता है, देखिए आलिम के सोहबत में रहने की बरकत। वो शख्स बोलता अंसारी, मुबारकपुरी अंसारी, कि जब नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने बटन तक दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया। ये सुन के हाफिज मिल्लत बहुत रोने लगे और ले ली, रोते रोते घर चले। चंद दिनों के बाद में पूरे मुबारकपुर में बात फैल गई, अंसारी फलां अंसारी ने 37,500, 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, करोड़ों के मुकाबले की बात है। 37,500 दे दिया, 37,500 दे दिया। उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, बीवी को लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया और मेडिसिन फीस समेत 7 रुपये का बिल बनाया उसने और कहा ये बिल जमा कीजिए। अंसारी साहब ने कहा डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, खाते पे लिख लीजिए, बाद में दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा हाफिज जी को देने के लिए 37,500, बीवी के इलाज के लिए 7 रुपये नहीं तेरे पास? बस ये सुनना था कि बीवी की कलाई पकड़, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंका और कहता बीवी से चल, अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम। हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हुई। हाफिज मिल्लत की बारगाह में लगे, हजरत ऐसा मामला हुआ। हाफिज मिल्लत फिर रोने लगे और दम किया, उंगली कट जाए, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निगलोकैन, हाइड्रोजन, हड्डी टूट जाए तो एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर, 90 दिन की वारंटी, नो वारंटी। ये हकीकत है। लेकिन अल्लाह ने कुरान की तिलावत और हाफिज मिल्लत की फूक में वो तासीर दी है कि दुनिया की किसी मेडिसिन में वो कमाल नहीं, किसी मेडिसिन में वो कमाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम है, कुरान आलमगीर निज़ाम है। और आज दुनिया में एक भी ऐसा आदमी बता दे जो भगवान को देखा है? कोई ऐसा आदमी जो दुनिया में भगवान को देखा? कोई नहीं बोलेगा नहीं देखा। अभी एक ने यूपी में एक बयान दिया कि सीता नकाब पहनती थी क्या, ये बयान दिया। देखा कि नहीं देखा वल्लाहु आलम, वो जाने। जब मेरे पास ये आवाज आई तो मैंने कहा वो तो मुझे नहीं मालूम देती पहनती थी कि नहीं पहनती, लेकिन फातिमा तो ज़हरा पहनती थी, ये पता है। फातिमा तो ज़हरा पहनती थी। अल्लाह को देखा प्यारे मुस्तफा ने, देखा कि नहीं देखा? और प्यारे मुस्तफा को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने देखा, उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा कासिम ने देखा, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सगदी ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फर्द तूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखज़ूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहिद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद मूसा ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे भैया ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको हुजूर सदरुश शरिया ने देखा,
الشریعہ اختر رضا خان نے دیکھا اور تاج الشریعہ کو ہم سنی مسلمان نے دیکھا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے وایا وایا اللہ کو دیکھا. ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا. الحمدللہ. اس لیے اسلام حق ہے, قرآن عالمگیر نظام ہے. علماء سے جڑے رہیں. راشٹریہ علماء کونسل کی یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے. ہم پراؤڈ آف both persons connected with راشٹریہ علماء کونسل نیپال. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.